ملا ٹائمز میں خوش آمدید۔ امریکہ اور ایران کے بیچ میں جاری لڑائی اب عالمی جنگ میں تبدیل ہوتی جا رہی ہے۔ اس جنگ میں کئی اور ممالک بھی آ سکتے ہیں، کیونکہ امریکہ نے اب جس طرح کا فیصلہ کیا ہے، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جس طرح کا اعلان کر دیا ہے ایران کو لے کر کے، اب یہ معاملہ صرف ایران تک نہیں رہا بلکہ چین، روس، ترکی، متحدہ عرب امارات اور کئی ملکوں پر اب اس کی آنچ آئے گی۔ کئی ممالک اس کی زد میں آئیں گے اور ان دیشوں کے پاس اب دو میں سے ایک ہی فیصلہ کرنا ہوگا۔ یا تو ان دیشوں کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ وہ امریکہ کی بات کو مانیں گے اور ایران سے ان کا ہر رشتہ ختم ہو جائے گا، یا پھر وہ امریکہ کی بات نہیں مانیں گے، وہ ایران کے ساتھ اپنا رشتہ باقی رکھیں گے، اور اس صورت میں امریکہ ان ملکوں پر پابندیاں لگائے گا، ان پر ٹیرف لگائے گا۔ اور چین، ترکی اور دنیا کے دوسرے ممالک اب کھل کر سامنے آ چکے ہیں۔ انہوں نے ایران کا ساتھ چھوڑنے سے صاف لفظوں میں انکار کر دیا ہے۔ کل کی خبر ہے، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک ٹویٹ کر کے کہا کہ دنیا کا ہر وہ دیش جس کا ایران کے ساتھ تجارتی رشتہ ہے، جس کا بزنس کا تعلق ہے، جو دیش ایران سے تیل خریدتا ہے یا کوئی سامان ایکسپورٹ کرتا ہے یا امپورٹ کا رشتہ ہے، ایسے تمام دیشوں پر امریکہ 25% ٹیرف لگائے گا۔ اور امریکہ کا یہ اعلان روس کے لیے بڑا ایک دھچکا ہے، چین کے لیے ایک جھٹکا ہے، ترکیہ کے لیے جھٹکا ہے، یو اے ای اور پاکستان اور بھارت کے لیے بھی جھٹکا ہے۔ اب چین کا واضح بیان آ چکا ہے، ترکی کا آ چکا ہے، پاکستان نے کھل کر اپنا اوپینین نہیں دیا ہے، لیکن یہ تمام دیش اب زد میں آنے والے ہیں۔ امریکہ چاہ کیا رہا ہے؟ دراصل امریکہ کی پوری کوشش ہے، امریکہ کی پلاننگ یہ ہے کہ ایران کو تنہا کر دیا جائے، ایران کو اکیلا کر دیا جائے، دنیا کے کسی بھی دیش کا ایران کے ساتھ تعلق نہ رہے۔ دراصل امریکہ ایران میں رجیم چینج کرنا چاہتا ہے، حکومت کو بدلنا چاہتا ہے، اپنے لوگوں کو ایران میں امریکہ بیٹھانا چاہتا ہے۔ جو موجودہ اسلامی جمہوریہ نظام ہے وہاں کا، یہ اسلامی جمہوریہ انقلاب، اس کو امریکہ ختم کرنا چاہتا ہے۔ علماء کرام کی ایران میں حکومت ہے، ان کے ہاتھوں سے امریکہ اقتدار لینا چاہتا ہے، اور اس کے لیے امریکہ ڈائریکٹ ایران پر حملہ کرنے کی ابھی صلاحیت نہیں رکھتا ہے، کیونکہ 2025 میں جون میں 12 دنوں کی جو جنگ ہوئی، اور اس جنگ کے دوران ایران نے جس طرح مقابلہ کیا، ایران نے جس طرح اسرائیل کو جواب دیا، امریکہ کے فوجی اڈے پر بھی ایران نے حملہ کیا، تو امریکہ کو یہ بات اچھی طرح سمجھ میں آ چکی ہے کہ ایران عراق نہیں ہے، ایران لیبیا نہیں ہے، یا ایران وینزویلا نہیں ہے، جہاں امریکہ اپنی آرمی کو بھیج کر اپنے آپریشن کو کامیابی کے ساتھ انجام دے سکتا ہے، جہاں کے صدر کو امریکہ گرفتار کر سکتا ہے یا اس کو مار سکتا ہے، بلکہ ایران کا معاملہ مختلف ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ 1979 سے لے کر اب تک 10 مرتبہ امریکہ ایران میں پروٹیسٹ کروا چکا ہے، احتجاج کروا چکا ہے، لوگوں کو سڑکوں پر لا چکا ہے۔ اس کے باوجود بھی ایک بھی پبلک پروٹیسٹ میں جو حکومت کے خلاف ہوئے ہیں، اس میں امریکہ کو کامیابی نہیں مل سکی۔ اب اس مرتبہ امریکہ نے فائنل ڈیسیژن لے لیا ہے کہ وہ ہر حال میں ایران میں رجیم چینج کر کے رہے گا، اور اب تک امریکہ کے یہی منصوبہ تھا، یہی پلان تھا کہ پہلے عوام کو سڑکوں پر لانا ہے، وہاں پروٹیسٹ ہوگا، احتجاج ہوگا، پھر امریکہ کی ہیومن رائٹس نیوز ایجنسی یہ خبر شائع کرے گی کہ ایران میں 1-2 ہزار نہیں بلکہ 10,000 سے زیادہ مظاہرین کا، پروٹیسٹر کا قتل ہو گیا ہے، اور پھر ہیومن رائٹس کے وائلیشن کے الزام میں امریکہ کو ایران پر حملہ کرنے کا بہانہ مل جائے گا۔ امریکہ نے حملہ کرنے کا پلان بھی بنا لیا تھا۔ کل امریکی صدر نے سوشل ٹروتھ پر لکھ کر کے باضابطہ اعلان کر دیا کہ امریکہ کی مدد اب راستے میں ہے، امریکہ تختہ پلٹ کی تیاری کر چکا ہے۔ انہوں نے ایرانی پروٹیسٹر سے کہا کہ وہ اپنے پروٹیسٹ کو جاری رکھیں، تمام انسٹیٹیوشن پر قبضہ کرنا شروع کر دے، یعنی آرمی پر اپنا قبضہ کر لے، سپریم کورٹ پر قبضہ کر لے، پارلیمنٹ میں وہ گھس جائے، صدارتی محل میں گھس جائے، سپریم لیڈر کے گھر میں گھس جائے، سیدھا یہ اعلان کر کے کہا تھا، یہ حکم دیا تھا ایرانی پروٹیسٹرز کو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے۔ لیکن اب تازہ ترین خبر یہ ہے، اب تازہ ترین نیوز یہ ہے کہ اسرائیل نے اور دوسرے دیشوں نے امریکہ کو یہ کہا کہ فی الحال وہ ایران پر اسٹرائک نہ کرے، ایران پر حملہ نہ کرے، کیونکہ ایران کی حکومت ابھی بھی کمزور نہیں ہوئی ہے۔ ایرانی حکومت کا عوام کے ساتھ جو رشتہ ہے ابھی تک برقرار ہے، مضبوط بنا ہوا ہے، اس لیے امریکی صدر کو فوراً اسٹرائک کرنا
الٹا پڑے گا، اس کا نقصان اٹھانا پڑے گا، ایرانی حکومت کو مزید کمزور ہونے دیا جائے۔ ادھر کل سے یہ خبر چلائی جا رہی ہے اور الگ الگ ذرائع سے الگ الگ دعویٰ کیا جا رہا ہے۔ ایران انٹرنیشنل کی رپورٹ میں یہ دعویٰ کیا گیا کہ پچھلے 2 ہفتے کے پروٹیسٹ میں ایران میں 12,000 پروٹیسٹر کا قتل ہو چکا ہے۔ ٹائمز آف اسرائیل کی رپورٹ ہے کہ 2,000 کا قتل ہو چکا ہے اور 18,000 سے زیادہ کو ایران کی پولیس نے گرفتار کر لیا ہے۔ امریکہ کی میڈیا کا دعویٰ ہے کہ 20,000 سے زیادہ کا قتل ہو چکا ہے۔ الگ الگ دعوے کیے جا رہے ہیں اور جیسے یہ رپورٹ سامنے آتی ہے کہ 12,000 20,000 لوگوں کی ہلاکت ہو چکی ہے ایران میں پروٹیسٹ کے دوران، اسی وقت پوری دنیا کو یہ لگنے لگتا ہے کہ شاید اب امریکہ ایران پر حملہ شروع کر دے گا، امریکہ اسٹرائک کر دے گا، کیونکہ امریکی صدر نے اپنے ٹویٹ میں بھی ایسا ہی کہا کہ ہیلپ از آن دا وے، کہ مدد راستے میں ہے۔ اور آگے امریکی صدر نے اپنے ٹویٹ میں لکھا تھا میگا، یعنی میک ایران گریٹ اگین۔ تو یہ امریکی صدر نے لکھا تھا، یہ امریکی صدر کا اپنا پلان تھا، لیکن اس کے بعد ہی اب یہ خبر چل رہی ہے کہ امریکہ کو اسرائیل اور دوسرے دیشوں نے کہا کہ ابھی وہ ایران پر اسٹرائک نہ کرے، حملہ نہ کرے۔ اور اس کے بعد ہی یہ خبر سامنے آتی ہے کہ امریکہ نے فائنینشیل دباؤ بنانا شروع کر دیا ہے چین، بھارت اور ان تمام دیشوں پر جن کا ایران کے ساتھ تجارتی رشتہ ہے۔ ایران پچھلے 15 سالوں سے سیکشن کا سامنا کر رہا ہے، پابندیوں کا سامنا کر رہا ہے۔ زیادہ تر ممالک کے ساتھ ایران تجارت نہیں کر سکتا، ان ملکوں کے ساتھ ایران کا کوئی دوسرا رشتہ نہیں ہے۔ ابھی حالیہ پروٹیسٹ کے بعد تو یورپ کے ملکوں نے ایران کی ایمبیسی کو بند کرنا شروع کر دیا ہے، ایرانی شہریوں کو وہاں سے نکالنا شروع کر دیا ہے۔ یورپین یونین کی پارلیمنٹ میں ایران پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ ابھی حال ہی میں یعنی 12 روزہ جنگ کے بعد یونائٹڈ نیشن نے، یورپین یونین نے، فرانس نے، انگلینڈ نے، جرمنی نے ایران پر کئی طرح کی پابندی لگا دی تاکہ ایران کی معیشت مزید کمزور ہو۔ امریکہ پہلے سے پابندی لگا چکا ہے اور معاشی پابندیوں کے باوجود ایران لگاتار آگے بڑھ رہا ہے، ترقی کر رہا ہے، کیونکہ ایران کا چین کے ساتھ اچھا اور مضبوط تجارتی رشتہ ہے۔ اس کے بعد ترکی کے ساتھ ایران کا مضبوط تجارتی رشتہ ہے، پاکستان کے ساتھ بھی رشتہ ہے، بھارت کے ساتھ بھی رشتہ ہے۔ اور اب اس طرح کے تمام ممالک کو سیدھا امریکہ نے کہا کہ اگر یہ ممالک ایران کے ساتھ اپنا تجارتی رشتہ باقی رکھیں گے تو امریکہ ان دیشوں پر مزید 25% ٹیرف لگائے گا۔ امریکہ نے چین پر، بھارت پر، پاکستان پر، دوسرے دیشوں پر پہلے سے ٹیرف لگا رکھا ہے اور اب امریکہ کہہ رہا ہے کہ اگر چین کے ساتھ ان کا تجارتی رشتہ رہا تو امریکہ مزید ٹیرف لگائے گا پہلے والے ٹیرف کے علاوہ، اور اس کی وجہ سے چین کا نقصان ہو سکتا ہے، انڈیا کا نقصان ہوگا، ترکیہ کا نقصان ہوگا، کیونکہ پہلے سے لوگ امریکی ٹیرف کو جھیل رہے ہیں۔ اور اسی وجہ سے اب ایکسپرٹ یہ مان رہے ہیں، الجزیرہ نے بھی لکھا کہ اب اس جنگ میں امریکہ نے خود چین کو آنے کی دعوت دے دی ہے۔ چین اب تک سائیڈ میں کھڑا تھا، چین امریکہ کی مداخلت کی، امریکہ کے انٹرفیئر کی مذمت ضرور کر رہا تھا، کنڈم کر رہا تھا، لیکن کھل کر ابھی چین نہیں آیا تھا۔ جیسے وینزویلا کے صدر کو امریکہ نے گرفتار کر لیا تو چین نے کنڈم کیا، لیکن کھل کر چین نہیں آیا۔ اس سے پہلے اور بھی کئی معاملے ہوئے، چین نے کنڈم کیا، کھل کر سامنے نہیں آیا۔ جب ایران میں ہونے والے پروٹیسٹ کو امریکہ نے سپورٹ کیا، رجیم چینج کرنے کی بات چیت کی، تو چین کی فورن منسٹری نے بیان جاری کر کے اس کو ایران کے انٹرنل معاملے میں مداخلت بتائی، لیکن چین نے کھل کر امریکہ کو اپوز نہیں کیا۔ اس کے علاوہ چین نے ایران کو ٹیکنالوجی دی ہے کئی طرح کی، جس کے ذریعے ایران لگاتار موساد اور CIA کے ایجنٹوں پر حاوی ہو رہا ہے، قابو پا رہا ہے، لیکن ڈائریکٹ چین کھل کر نہیں آیا تھا۔ لیکن اب الجزیرہ کا تجزیہ یہ ہے، دنیا کے دوسرے ایکسپرٹ یہ مان رہے ہیں کہ اس جنگ میں اب چین بھی کھل کر آ سکتا ہے، کیونکہ امریکہ کی اس پابندی کی وجہ سے، امریکہ کے اس فیصلے کی وجہ سے چین کی اکنومی کا نقصان ہو سکتا ہے۔ اور چین سب سے زیادہ تیل ایران سے خریدتا ہے، یعنی ایران کا جو تیل ہے، جو پیٹرول ہے، وہ 80% چین کے ہاں پہنچتا ہے، بقیہ دوسرا دیش ایران سے تیل خریدتا ہے۔ تو ایرانی تیل کا سب سے بڑا خریدار چین ہے، اور ایران کی جو پوری معیشت ہے، جو اکنومی ہے، وہ پیٹرول پر ٹکی ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ جو دوسری صنعت ہے ایران کی، دنیا کی مارکیٹ میں اس کی اتنی زیادہ ویلو نہیں، تو پیٹرول ہی ایران کی ریڑھ کی ہڈی ہے، جان ہے، اور اس پر اب امریکہ قدغن لگا رہا ہے۔ ان دیشوں کی لسٹ آپ دیکھ لیجئے کہ کن کن ممالک کا ایران کے ساتھ تجارتی رشتہ ہے اور کون دیش ایران کو ایکسپورٹ کرتا ہے، امپورٹ کرتا ہے، اور اس میں پہلے نمبر پر
चीन है। चीन बड़ी तादाद में ईरान को प्रोडक्ट एक्सपोर्ट भी करता है और इंपोर्ट भी करता है, और डॉलर को अब गिनते जाइए, कायदा है सैकड़ा हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब तक ये मामला पहुंच जाएगा। चीन के बाद दूसरे नंबर पर तुर्की है, जो सबसे ज़्यादा सामान ईरान को इंपोर्ट भी करता है और एक्सपोर्ट भी करता है। तीसरे नंबर पर पाकिस्तान है, जो सबसे ज़्यादा सामान ईरान को एक्सपोर्ट करता है। चौथे नंबर पर इंडिया है, जो सबसे ज़्यादा सामान ईरान को एक्सपोर्ट करता है। पाँचवें नंबर पर आज़रबाईजान है, छठे नंबर पर आर्मीनिया है, सातवें नंबर पर उज़्बेकिस्तान है, आठवें नंबर पर कुवैत है, नवें नंबर पर जॉर्जिया है और 10वें नंबर पर जर्मनी है। ये टॉप 10 ममालिक है जो सबसे ज़्यादा ईरान में अपना प्रोडक्ट्स, अपना सामान एक्सपोर्ट करते हैं। अगर इंपोर्ट्स करने वालों की बातचीत की जाए कि कौन से ममालिक से ईरान सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट्स को, सामानों को इंपोर्ट करता है, तो इंपोर्ट करने वालों में भी नंबर 1 चीन है, दूसरे नंबर पर तुर्की है, तीसरे नंबर पर ब्राज़ील है, चौथे नंबर पर जर्मनी है, पाँचवें नंबर पर इंडिया है, छठे नंबर पर इटली है, सातवें नंबर पर मलेशिया है, आठवें नंबर पर नीदरलैंड्स है, नवें नंबर पर फ्रांस है और 10वें नंबर पर कनाडा है। ये 10 ममालिक है जहां से सबसे ज़्यादा ईरान अपना सामान इंपोर्ट करता है। तो ये इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करने वाले देशों की फहरिस्त है, लिस्ट है। अब अमेरिका ने इन तमाम मुल्कों को कहा कि तुम्हारा ईरान के साथ इंपोर्ट का या एक्सपोर्ट का कोई भी तिजारती रिश्ता रहेगा, कोई भी बिज़नेस का ताल्लुक़ रहेगा, तो अमेरिका 35% टैरिफ लगा देगा और इसकी वजह से बहुत ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। अमेरिका ने क्या कहा, अमेरिकी सदर ने लिखा क्या, उसको ज़रा सा देख लीजिए। अमेरिकी सदर ने लिखा था, जो भी मुल्क इस्लामी जमहूरियत ईरान के साथ कारोबार करेगा, बिज़नेस करेगा, उसे अमेरिका के साथ होने वाली हर किस्म की बिज़नेस और तिजारत पर 25% टैरिफ अदा करना होगा। ये हुक्म फौरी तौर पर नाफिजुल अमल होगा और ये हतमी है, यानी इस फैसले में कुछ भी तब्दीली मुमकिन नहीं है। हालांकि अल जज़ीरा ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि अभी तक व्हाइट हाउस की वेबसाइट पर इस फैसले के बारे में कोई अपडेट नहीं है, लेकिन अब ऐसा भी नहीं है कि आप ये कह दें कि अमेरिकी सदर बड़े बड़बोले हैं, वो कहते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं, या अमेरिकी सदर के दिल में जो आता है वो बोल देते हैं और वो अमेरिका की ऑफिशियल पॉलिसी नहीं होती या वो वाइट हाउस का ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं होता। बल्कि अब ऐसा भी नहीं है। जब से वेनेजुएला पर अमेरिका ने फौजी कार्रवाई की, अमेरिकी सदर ने गिरफ्तार करने का ऐलान किया वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को, उसके बाद अमेरिकी सदर ट्रंप को लोगों ने सीरियस लेना शुरू कर दिया है कि अमेरिकी सदर जो कहते हैं वो अमेरिका की पॉलिसी का हिस्सा होता है, वो वाइट हाउस का ऑफिशियल स्टेटमेंट होता है। ये अलग बात है कि उसका ऐलान अमेरिकी सदर खुद सोशल ट्रुथ पर आकर करते हैं, लेकिन वो अनऑफिशियल नहीं होता। तो अब अगर अमेरिकी सदर ने ऐसा कह दिया है तो इसको हल्के में नहीं लिया जा सकता। अब अल जज़ीरा की रिपोर्ट यह है कि साल 2024 में ईरान और चीन के बीच में जो तिजारत हुई है, जो बिज़नेस हुई है, वो 13 अरब डॉलर का है। और 13 अरब डॉलर की जो मुश्तरका बिज़नेस हुई है ईरान और चीन के बीच में, ये ऑफिशियल है। ईरान और चीन के बीच में तिजारत का एक बड़ा पार्ट वो है जो अनऑफिशियल होता, जो रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं बन पाता है, क्योंकि अमेरिका ने पाबंदियां लगा रखी है, यूएन की तरफ से सेक्शन है। तो बिज़नेस बहुत सारी हिडन होती है, सीक्रेट होती है, और इसीलिए कहा जा रहा है, अनऑफिशियल रिपोर्ट यह है कि 13 अरब तो ऑन रिकॉर्ड है, और जो रिकॉर्ड के बाहर बिज़नेस की शरह है, बिज़नेस की जो वैल्यू है दोनों देशों के बीच में, वो 37 अरब डॉलर से ज़्यादा है। इसके अलावा ये रिपोर्ट भी है कि चीन ईरान के 80% ऑयल का, तेल का ख़रीदार है, और इसी पर ईरान की पूरी इकोनॉमी और मैशत टिकी हुई है। अगर चीन ने ईरान से तेल ख़रीदना बंद कर दिया तो फिर ईरान की मैशत और ज़्यादा डाउन हो जाएगी, ईरान में बेरोज़गारी, महंगाई और ज़्यादा बढ़ती जाएगी। और चीन के अलावा दूसरा मुल्क हिम्मत भी नहीं कर सकता ईरान से इतनी बड़ी मकदार में तेल ख़रीदने की, क्योंकि अमेरिका से पंगा लेने वाला देश इस दुनिया में दो ही है।
पहले नंबर पर रूस है और दूसरे नंबर पर चीन है। रूस और चीन के अलावा कोई और देश नहीं है जो अमरीकी मफादात के खिलाफ जा सके या अमरीका की आंखों में आंखें डालकर बात कर सके। और भी बहुत सारे ममालिक हैं, उन ममालिक के सरबराहों को दिन रात अमरीकी सदर जलील करता है और उनकी तरफ से एक लफ्ज़ नहीं बोला जाता, जवाब नहीं दिया जाता। आप देख सकते हैं, इसलिए रूस और चीन ही सबसे ज़्यादा अहम है जो अमरीका के मफाद के ख़िलाफ़, पॉलिसी के ख़िलाफ़, फ़ैसले के ख़िलाफ़ अपना फ़ैसला करता है और अपने मुल्क के निज़ाम को चलाता है। अब रूस ईरान से तेल ख़रीद नहीं सकता क्योंकि रूस में ख़ुद बहुत ज़्यादा ऑयल पाया जाता है, तो रूस को ज़्यादा दूसरे मुल्कों से तेल ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। रूस ऑयल को इम्पोर्ट नहीं करता बल्कि एक्सपोर्ट करता है। और रूस से इंडिया जब इन दिनों तेल ख़रीद रहा है तो रूस और यूक्रेन के दरमियान जंग चल रही है और इसको लेकर के ख़ुद अमेरिका इंडिया को धमकियां दे रहा है कि इंडिया रूस से तेल ख़रीदना बंद कर दे। पिछले दिनों तो ये भी कहा गया कि अगर इंडिया ने रूस से तेल की ख़रीदारी जारी रखी तो 500% टैरिफ भारत पर अमेरिका लगा देगा। तो रूस अपना तेल एक्सपोर्ट करता है, वो इंपोर्ट नहीं करता क्योंकि रूस में ऑयल पाया जाता है। अब जिन देशों को ऑयल इंपोर्ट करने की ज़रूरत है, जिनको तेल ख़रीदने की ज़रूरत है, उनमें बड़ा मुल्क चीन है और चीन किसी मुल्क से डरता नहीं। चीन अमेरिका की बात नहीं मानता कि जिससे अमेरिका कहेगा तेल ख़रीदने को उसी से तेल ख़रीदेगा। इसलिए चीन सबसे ज़्यादा तेल ईरान से ख़रीदता है। अब अमेरिका चीन को धमकी दे रहा है कि तुम ईरान से तेल ख़रीदना बंद करो, लेकिन चीन ने अपना स्टेटमेंट जारी करके कह दिया कि चीन पीछे नहीं हटेगा, चीन ईरान से तेल की ख़रीदारी करता रहेगा और अमेरिका अपना फ़ैसला अपने घर में रखे। चीन अमेरिका के सामने झुकने वाला नहीं है, लेकिन चीन की मैशत पर हो सकता है असर पड़े क्योंकि अभी तक चीन और अमेरिका के बीच में जो टैरिफ वार चल रही है या आप ट्रेड वार कह सकते हैं, तो उसमें अमेरिका ने चीन पर 35% टैरिफ लगा रखा है और मज़ीद ये 25% टैरिफ जुड़ेगा तो ये जो टैरिफ है वो 60% तक पहुंच जाएगा। इसके बावजूद चीन का कहना है कि इस टैरिफ वार में कोई भी फातेह नहीं होगा। अगर अमेरिका हम पर टैरिफ लगाएगा तो चीन भी अमेरिका पर टैरिफ लगाएगा। और आपको याद होगा पिछले दिनों की जो बात है कि जब अमेरिका ने चीन पर 50% टैरिफ लगाया तो चीन ने पलटवार करते हुए अमेरिका पर 100% टैरिफ लगा दिया। जब अमेरिका ने 120% चीन पर टैरिफ लगाया तो चीन ने अमेरिका पर 140% टैरिफ लगा दिया था और फिर अमेरिका को पीछे हटना पड़ा था। अमेरिका ने अपना फैसला वापस लिया था। चीन के बाद दूसरा मुल्क जिसका सबसे बड़ा तिजारती रिश्ता है ईरान के साथ वो तुर्की है। तुर्की और ईरान के बीच में जो तिजारत की शरह है वो 5 अरब डॉलर की है और ये 2024 का डेटा। इससे पहले तिजारत की शरह ज़्यादा थी लेकिन पाबंदियों की वजह से 2024 में तिजारत की शरह ये कम हो गई है। अब अमेरिका ने तुर्की को भी धमकी दे दी है कि तुम ईरान के साथ अपनी बिजनेस और तिजारत को बंद करो। और एल्युमिनियम में अमेरिकी स्टील के सेक्टर में तुर्की पहले से 50% अमेरिकी टैरिफ को झेल रहा है और मज़ीद 25% टैरिफ लगने का मतलब यह है कि तुर्की की इकनॉमी पर असर पड़ेगा। तुर्की लीरा की कीमत पहले से डाउन है, लेकिन इसके बावजूद तुर्की के फॉरेन मिनिस्टर ने कल ईरान के फॉरेन मिनिस्टर से बातचीत की। तुर्की ने वाज़े लफ्ज़ों में अपना स्टेटमेंट जारी करके कहा कि ईरान में जो कुछ हो रहा है वो ईरान का इंटरनल मामला है और किसी बाहर के देश को यहाँ आकर हमला करने की ज़रूरत नहीं है। तुर्की का बयान इसलिए भी अहम है कि तुर्की नेटो का मेंबर है, अमेरिका भी नेटो का मेंबर है और अमेरिका अगर ईरान पर हमला करेगा तो अकेले नहीं करेगा। अमेरिका चाहेगा कि नेटो के ममालिक भी इस हमले में शरीक हो जाएं और नेटो का उसूल यह है कि जब तक तमाम ममालिक का मुत्तफ़िक़ा फ़ैसला नहीं हो जाता उस वक्त तक नेटो किसी भी देश पर हमला नहीं करता। और तुर्की नहीं चाहेगा कि नेटो की फ़ौज ईरान पर जाकर हमला करे और इसी वजह से कई मरतबा अमेरिका को नेटो से प्रॉब्लम होती है। अमेरिकी सदर नेटो से निकलने की बातचीत करते हैं, इसको गैर मौसर बताते हैं ताकि अमेरिका ख़ुद अपनी आर्मी की बुनियाद पर जिस पर चाहे हमला करे, किसी और पर उसको मुनहसिर ना होना पड़े। तुर्की के बाद तीसरा देश जिसका ईरान से सबसे ज़्यादा तिजारती ताल्लुक़ है वो पाकिस्तान है। साल 2024 में पाकिस्तान और ईरान के दरमियान भी तिजारत की शरह 1.2 अरब डॉलर की रही है। चीन और तुर्की के मुकाबले में ये बहुत ज़्यादा कम है। ये भी इम्कान है, बल्कि बाज़ लोग लिख रहे हैं जो पाकिस्तानी हैं वो भी और अरब के एक्सपर्ट भी, यूरोप के तज्ज़िया निगार भी, के
ईरान और पाकिस्तान के दरमियान जो तिजारत होती है तो उनमें ज़्यादातर रिकॉर्ड में नहीं आ पाती है, क्योंकि दोनों अपना लेन देन डॉलर में नहीं करते हैं, आलमी उसूलों के मुताबिक नहीं करते हैं, वरना पाकिस्तान बहुत ज़्यादा तेल की ख़रीदारी ईरान से करता है, लेकिन ये मामला सीक्रेट रहता है। इसलिए रिकॉर्ड में सिर्फ 1.2 अरब डॉलर की तिजारत ही या बिज़नेस ही दर्ज है पाकिस्तान और ईरान के बीच में। उधर पाकिस्तान भी अमरीकी टैरिफ को झेल रहा है और अमरीका ने पाकिस्तान पर 19% टैरिफ लगा रखी है। अब अगर पाकिस्तान अमेरिका की बात नहीं मानता है तो मज़ीद 25% टैरिफ को झेलना पड़ेगा। 25 + 19 अब जोड़ लीजिए कितना होगा, और पाकिस्तान की मैशत इसको बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुस्लिम मुल्क है जिसके पास एटमी ताकत है, जिसकी आर्मी मजबूत है, लेकिन पाकिस्तान अमेरिका का सबसे बड़ा पिट्ठू है, पाकिस्तान अमेरिका के सबसे ज़्यादा करीब है, और ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि पाकिस्तान अमेरिका की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ जाकर कोई कदम उठा सके या वो ईरान का साथ दे सके। हालांकि ख़बर यह है कि जिस तरह ईरान के हालात बिगड़ते जा रहे हैं, अमेरिका की धमकी बढ़ती जा रही है। ईरान और पाकिस्तान के फ़ॉरेन मिनिस्टर्स ने आपस में फ़ोन पर बातचीत की है, इलाक़ाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया है। ईरान की सरहद दुनिया के जिन 7 देशों से मिलती है उसमें से एक पाकिस्तान भी है, यानी पाकिस्तान और ईरान का जो बॉर्डर है आपस में मिलता है, इसलिए पाकिस्तान बहुत ज़्यादा अहम है। पाकिस्तान के बाद चौथा देश जिसका ईरान के साथ सबसे ज़्यादा तिजारती रिश्ता है, जहां सबसे ज़्यादा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होता है, चौथे नंबर पर वो भारत है। इंडिया और ईरान के बीच में तिजारत की जो टोटल शरह है वो 1.5 अरब डॉलर की है और ये साल 2024 का डेटा है। लेकिन भारत भी अमरीकी टैरिफ को झेल रहा है। भारतीय स्टील पर, एल्युमिनियम पर अमेरिका ने पहले से 50% टैरिफ लगा रखा है और ईरान के साथ तिजारती रिश्ता रखने की वजह से मज़ीद 25% टैरिफ लग जाएगा। तो भारत का जो स्टील या भारत का दूसरा सामान जो अमेरिका की मार्केट में बिक रहा है उस पर टैरिफ की शरह 75% हो जाएगी और इसकी वजह से भारत की कंपनियों का, भारत के सामान का बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, भारत की इकोनॉमी पर इसका असर पड़ेगा। अब देखना यह है कि क्या भारत भी चीन की तरह अमेरिका को जवाब देगा, क्या भारत का ईरान के साथ तिजारती रिश्ता बाकी रहेगा या कम हो जाएगा, ख़त्म होगा। उधर भारत रूस के साथ तेल ख़रीदता है और रूस के साथ ऑयल की ख़रीदारी करने पर पहले ही अमेरिका भारत को धमकियां दे चुका है और 500% टैरिफ लगाने का अमेरिका ने ऐलान कर रखा है, उस पर अमेरिका गौर व खौज कर रहा है। तो ये पूरा डेटा है कि जो बड़े ममालिक हैं जिनके ईरान के साथ तिजारती रिश्ते हैं, अब अमेरिका उन पर दबाव बना रहा है ताकि ईरान की जो इकोनॉमी है, ईरान की जो मैशत है वो डाउन हो जाए। और ईरान की मैशत का जो पूरा इन्हिसार है, दारो मदार है, वो तेल पर है। बल्कि रिपोर्ट ये है, तज्जिया ये है कि ईरान की जो टोटल इकोनॉमी है उसमें से 80% का इन्हिसार तेल पर है। यानी ईरान का तेल बिकेगा तो ईरान में पैसा आएगा, ईरान की मैशत अच्छी होगी, ईरान के जितने हुकाम हैं उन सबको तनख्वाह दी जाएगी। और अगर ईरान का तेल नहीं बिकेगा तो ईरान की मैशत और ज़्यादा कमज़ोर होती जाएगी। अब ईरान की मैशत इन पाबंदियों की वजह से लगातार डाउन होती जा रही है। अब रिपोर्ट यह है कि साल 2012 में ईरान की जो जीडीपी थी यानी पर कैपिटा इनकम वो $800 थी और साल 2024 में ये जीडीपी कम होकर $5000 तक आ गई है। यानी पर कैपिटा इनकम 2022 में $8000 और 2024 में सिर्फ $5000। 2011 में ईरान रोज़ाना 22 लाख बैरल तेल निकालता था, बरामद करता था, और 2020 में घटकर सिर्फ 4 बैरल रह गया। तो कितना फ़र्क है। साल 2011 ईरान रोज़ाना 22 लाख बैरल तेल निकाल रहा है, दुनिया भर को बेच रहा है और वहाँ की इकनॉमी लगातार अच्छी होती जा रही थी। और साल 2020 में ईरान सिर्फ रोज़ाना 4 लाख बैरल तेल निकाल रहा है और 2025 तक जो ईरान में तेल निकालने की शरह है वो 15 लाख बैरल हुई है यौमिया। बीच में ईरान के तेल निकालने की शरह कुछ बढ़ी और साल 2025 में ईरान रोज़ाना
15 लाख बैरल तेल निकाल रहा था, लेकिन जब इजराइल के साथ जंग हुई और ईरान ने एटॉमिक इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी को एक्सेस से रोक दिया कि ये लोग ईरान की बातों को लीक करते हैं कि ईरान की एटमी तवानाई क्या है, ईरान एटम बम बना रहा है नहीं बना रहा है, तो दोबारा जब यूनाइटेड नेशन ने ईरान पर पाबंदी लगा दी, यूरोपियन यूनियन ने पाबंदी लगा दी, तो अब दोबारा ईरान की करेंसी में कमी आ गई है, तेल की पैदावार में कमी आ गई है और अब रोज़ाना ईरान सिर्फ 4 बैरल तेल ही निकाल रहा है जिस तरह 2020 में कर रहा था। तो ईरान को पाबंदियों का मुसलसल सामना है। 2024 में ईरान ने जो टोटल इंपोर्ट किया था उसकी जो मालियत है वो 22 अरब डॉलर की, और मुल्क की जो टोटल इकोनॉमी है, जो टोटल मुल्क की जीडीपी है वो 475 अरब डॉलर की। लेकिन 2020 में ईरान की कुल बरामदात, यानी ईरान में जो कुछ तेल निकला, जो कुछ वहाँ प्रोडक्ट्स तैयार हुए, उन सब की जो टोटल वैल्यू होती है वो सिर्फ 22 अरब डॉलर। तो ईरान की टोटल इकोनॉमी का वो सिर्फ 5% बनता है। तो ये ईरान का बहुत बड़ा खसारा है, ईरान का बहुत ही बड़ा नुकसान है। अब मामला यह है कि अमेरिका को इस बात का यकीन हो चुका है, CIA और मोसाद ने भी अब रिपोर्ट पेश कर दी है कि फाइटर प्लेन के ज़रिए हमला करके ज़रिए ईरान में तख्ता पलट की कार्रवाई को अंजाम नहीं दिया जा सकता, और दूसरा रास्ता ही ऑप्शन है। दूसरा रास्ता यह है कि ईरान में लगातार लोगों को सड़कों पर उतारा जाए, प्रोटेस्टर्स को वहाँ भड़काया जाए, प्रोटेस्ट कंटिन्यू जारी रहा जाए, वहाँ लोग मारे जाएं और इस तरह खुद ही लोग वहाँ पहले इंस्टीट्यूशन पर कब्जा कर ले, ईरानी अवाम खुद ही पार्लियामेंट पर कब्जा कर ले, सदारती महल पर कब्जा कर ले, तमाम दफातर पर कब्जा कर ले, फिर अमेरिका को अपना मिशन अंजाम देने में आसानी होगी। इराक, वेनेजुएला, लीबिया जैसी कहानी ईरान में नहीं दोहराई जा सकती है। इसलिए अमेरिका ने अब दुनिया के इन बड़े बड़े देशों को धमकी दे दी है कि तुम ईरान के साथ अपना ट्रेड बंद करो, अपनी बिजनेस को, अपनी तिजारत को बंद करो। अब सूरत हाल यह है कि ईरान में प्रोटेस्ट और एहतजाज का सिलसिला बढ़ता जा रहा है, और ताज़ा तरीन रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के तमाम 31 सूबों में इस वक्त मुजाहिरीन सड़कों पर मौजूद है, उनका एहतजाज जारी है, लेकिन हुकूमती इदारों पर, सरकारी इदारों पर कब्जा करने में प्रोटेस्टर्स को कामयाबी नहीं मिल सकी है। एक और ख़बर है कि इंटरनेट की बंदिश 132 घंटा को तजावुज़ कर चुकी है। नेट ब्लॉक्स जो दुनिया भर में इंटरनेट का जायजा लेती है, उसकी रिपोर्ट यह है कि लगातार ईरान में इंटरनेट बंद है। उधर एलन मस्क ने स्टार लिंक को ईरान में लगाने की कोशिश की थी, लेकिन चीन की टेक्नोलॉजी का सहारा लेकर ईरान ने एलन मस्क के स्टार लिंक को भी बैन कर दिया और वो काम नहीं कर रहा है। पिछले दिनों में ईरान के सुप्रीम लीडर ने बाज़ाब्ता एक ट्वीट करके अमेरिकी सदर को धमकी दी थी और कहा था वो फिरौन है जो समझता है कि दुनिया का फैसला उसके मुताबिक होगा, लेकिन उसका अंजाम खुद फिरौन जैसा होगा। एक और ख़बर यह है कि रज़ा पहलवी, जो अपने आप को ईरान का अगला बादशाह समझता है, जो अभी वली अहद है या कह लीजिए मासूल वली अहद है, उसने आर्मी से ये अपील की है कि ईरान की आर्मी अब ईरान की हुकूमत का साथ देना बंद करे, वो अवाम का साथ दे। लेकिन ईरान में आर्मी से ऊपर पासदाराने इनकलाब है, रेवोल्यूशनरी फोर्स, जो सुप्रीम लीडर के मातहत है। इस वजह से आर्मी की ये बगावत भी अमेरिका के एजेंडे को कामयाब नहीं बना सकती है। इस वीडियो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मुलाकात होगी।